as we have discussed in last class, mirror, copy, rotate, scale up to here, right? Now I'm going to start with slice, and then I'll go through cut and slice is same thing, right? So we'll have to write like this. Then we'll talk about taper, bend, shell, stretch, tessellation, twist and symmetry. So these things we can apply for developing your design idea into a product. And how we can do it, I'm going to show you the way I have shown you in the last video, by using just one steel section and a sheet, maybe of the board or ply or SDHMR. So let's move to the screen. Here I'm going to make one rectangle, and this rectangle is going to be 2 inches, 2 inches. So this is what I have made, and I'll explode it. After that I'm going to remove this, then join these two lines, and then after I'm going to offset it. After offsetting, I'm going to close it. Look, what I'm doing is, I'm not teaching you AutoCAD, but what I'm trying to tell you that I have a restriction to use steel section, and by using this steel section we are going to make any type of composition to make furniture, building, interior, partition, architecture, whatever you feel like making, you can make. So this is what I have made. You can look at it. So the size is 2 inches this way, 2 inches this way, and height you can decide whatever you feel like. Got the point? So the topic I'm going to pick here is the slice or cut. You can slice this angle to your desire, and as I told you, you have another option to use this sheet and this angle. You can combine and you can make any type of furniture. So to do that, generally what I do, that I'm going to go to the front elevation. So AutoCAD is not mandatory to learn here, because I'm teaching you here the process of initiating your design. So I'm going to use slice, and that slice can be like this. I'm going to make one slice over here and then another slice over here. You can look at it, and then third slice I'm going to do here, right? And then after I can go to again top view, and then after I can mirror it. I'm combining the second option available in the list over here. This is called mirror. So I can use mirror, copy, rotate, scale, any combination to make the stuff, or I can use just one thing. Suppose I'm doing only slice, so I can use only slice. I can use slice combination with the scale, or maybe with rotate. So it's my choice. So these are what this list is called. What these are the variations. These variations you can apply to the given challenge. So your challenge is to have an angle, and that angle of varied size, multiple size, and that particular angle can be modified in these ways. You can either do mirror, copy, rotate, scale, taper, bend, shell, whatever you want you can do. So these are what variations, and after doing the variations you do the iterations. Iterations means you
multiply it. You use multiple times that particular angle. You change the number of the legs in the form of, you know, this angle. So that will be called as what? Iteration. So this is one leg, I have made two. If I mirror again, so I'll make how many? 4. So I can have 4 legs, 2 legs, 6 legs, 8 legs. So these number variation is called iterations. So first you use variation, then you use iteration. Okay. So in one set, this is just one set, I have sliced in one composition. You can have composition 2, 3, 4. You can cut this angle this way or horizontally, vertically, it's your choice. You can cut out some portion and, you know, simply take out from this angle. Suppose this portion I cut, and I cut this portion, remove, and central portion I retain, and then after I make multiple legs. So multiplying a certain thing will be called as iteration, right? So any number of iterations you can use to make your table. After doing this, you can simply put a top over it, and then your furniture is ready. For that, I'm going to go to X-ray. In X-ray, one can see inside. That's why, you know, I'm using it. And then after, I'm going to use this table top, and I'm going to have the thickness maybe 0.75, and this is almost done. I'm going to take it up. So any structure, be it furniture, be it architecture, be it interior space or furniture, so you can use this technique anywhere. There's no restriction of using it for only making a furniture. So this is what I have made by simply slicing the angle in such fashion. This is not 100% finished product. I tell you, this is what I have on spot, extempore I have thought it. So ये मेरे डिसीजन फाइनल नहीं है, मैं इसमें बहुत सारे आइट्रेशंस करूँगा, मैं तरह तरह से स्लाइसिंग कर सकता हूँ, राइट? तो मैं एक एक दिखा रहा हूँ, आप समझ गए ना? yes, अभी भी डाउट तो नहीं है कि मैं इस एंगल को किस तरीके से स्लाइस कर सकता हूँ? मैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, मैं 1 पीस में, 10 पीसेस में, 20 पीसेस में कैसे भी कट कर सकता हूँ. कट करने के बाद उसको कैसे भी कंबाइन कर सकता हूँ. दिस इज माई चॉइस. द पॉइंट. मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मान लो कि मैंने इसको स्लाइस जो किया था उसको यूं रखा, उसको ऐसे रखने के बाद इसको मैं बार बार कॉपी भी कर सकता हूँ, है ना? जैसे मान लो मैंने इस स्लाइस को लिया, स्लाइस को लेने के बाद इसको मैंने एरे कर लिया. एरे कौन सा वाला किया? मैंने रेक्टेंगुलर एरे किया. ये देखिए कुछ ऐसा किया, इसको एक्सेप्ट किया. अगेन हमने इसमें मिरर यूज़ किया. मिरर यूज़ करने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस पे इसको मैंने ऐसे यूज़ किया. आप देखेंगे इसको. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें वेरिएशन कितने यूज़ कर रहा हूँ? ये क्या था? एरे इज रोटेशन. सो रोटेट भी यूज़ किया मैंने इसमें. क्या यूज़ कर लिया? रोटेट. पहले मैंने स्लाइस किया ये, उसके बाद मैंने रोटेट किया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, मिरर. अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मिरर. अब आप देख सकते हैं ये मिरर, ये लीजिए, इन दोनों को भी मैंने मिरर कर दिया. अब आप देखो कुछ ऐसी कोई चीज़ बनी. आप कहोगे सर ये है क्या? ये किसी चीज़ की सपोर्ट हो सकती है. अब इसके ऊपर मैं टॉप लगा दूंगा. टॉप लगाने के बाद ये हमारा कोई ढांचा तैयार हो. आप कहोगे सर ये ढांचा है क्या? ये ढांचा कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी जिसमें मैंने, अब मैं कॉपी यूज़ करूँगा. ध्यान से देखिए, अब मैं वेरिएशन नंबर 4 यूज़ कर रहा हूँ इसी को बनाने में. ये देखिए मैंने क्या यूज़ किया? कॉपी.
तो ये हो सकता है कि ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक ऐसे कुछ बनाओ, ढांचा बनाओ, राइट। ये डिफरेंट फ्लोर्स हो सकते हैं। सो कोई भी फॉर्मेशन हो, वो फॉर्मेशन माइक्रो लेवल पे हो, मैक्रो लेवल पे हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू हैव जस्ट टू थिंग्स, एंगल and you have sheet. Combining them through these variations, you can combine multiple variations. This time I have used 4 different variations. After using these variations, look at it. I have used iteration also. Tell me what is iteration? Number, see, earlier we had 1, then I made 4. From those 4 I made then 8 and then 12. So these things are now 12. So this number multiplication is nothing but iteration. So iterations जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप, जैसे जैसे आप वेरिएशन को कंबाइन करेंगे, आइट्रेशंस बढ़ाएंगे, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। उस चीज़ को स्टिक करना है कि आप मुझे बनाना क्या है। अगर आपको लगता है कि एंगल से और शीट को यूज़ करके फर्नीचर बनाना है, सो अपने थॉट प्रोसेस को फर्नीचर की तरफ लेके जाइए। बिल्डिंग तो बनाएंगे नहीं अगर फर्नीचर आपको कंडीशन दिया गया। सपोज आई एम गिविंग अ कंडीशन टू मेक अ फर्नीचर यूजिंग एंगल एंड शीट, ऑब्वियसली यू वोंट मेक बिल्डिंग, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी प्रोसीड विद दिस process of thinking a fresh design, so you can use these variations. So I have explained you till slice. Now we'll move to taper. अब taper करने से क्या होगा? Suppose I just simply select them and then maybe I'm going to copy one of them, okay, and let's delete remaining ones. So simply delete them and then come to normal view. So I'm in normal view. I'll push pull or press pull to make it bigger so that I could work on it. So this is again one angle, and I have the option to use taper here. So I'm going to simply go to any elevation and then taper it. So how to taper it? I will simply rotate it, or maybe just 7 degree. So I have rotated 7 degree. After rotating it, I'm going to go to top. After going to top, simply I'm going to mirror it this way, and again I'm going to mirror it. So why I made a simple taper over here? So that I could make a different looking furniture. I'm simply going to put one top, but before using the top, I'll go to the front view and I will use the slice to cut its upper face, so that it becomes plain like this. See, I'm going to remove this. Look at it. I'm going to remove it so that this becomes plainer, because the moment you tilt, so this level, you can see it is going to have an angle. Look at it. Is it having angle over here? So generally we don't make any type of leg which is touching one portion on the ground, one point on the ground. All the surfaces should touch on the ground so that the table or the furniture could be stable. Got the point? So I'll have to slice. Can you see? This is horizontal now. This is coming horizontal, but the bottom is not coming horizontal. So what I'll do, I'll slice it again. Click over here, and then after slice, and remove the lower portion, and then after I'll come to the top view, and then
we can make table top like this. Got it? And yes, this is done. I'll move it up. So simply I can move it in the 3D, or maybe I can go to elevation to move it up. So you can see this is the another furniture which I have made. You can see in conceptual mode that this particular furniture is ready. So what I did, I simply used one variation of rotation. After doing the rotation, I used mirror. So I have used two variation to make this furniture. First I used what? पहले मैंने क्या यूज किया था? टेपर करने के बाद मैंने क्या किया? मिरर. देखिए एक इंटरेस्टिंग फर्नीचर रेडी है. नॉर्मल फर्नीचर से तो अच्छा है ना, एक स्टाइल आ गया इसमें, एक स्टाइल का एलिमेंट. सो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपको क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि देखिए होता क्या है, फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ करेंगे ना, किसी भी चीज़ को, सो आप ब्लैंक होते हैं. सो हाउ टू स्टार्ट? आंसर इज आप इन वेरिएशंस को यूज़ कीजिए. इन वेरिएशंस को यूज़ करने के बाद आप आइट्रेशंस को यूज़ कीजिए. रिपीटिशन जिसे कहते हैं, आइट्रेशन इज नथिंग बट रिपीटिशन. सो इस एंगल को मैंने क्या किया? रिपीट ही तो किया है. 3 टाइम्स मोर मैंने रिपीट किया. अब इसमें रिपीटिशन कितनी बार भी किया जा सकता है? 2 बारी, 4 बारी, 5 बारी, कितनी बारी भी कर सकते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल इसी लेग को मैं बाहर लेकर जाता हूं. नाउ यू कैन सी it's outside. I'll go to the top view, and after going to the top view I'll use array command. In array command I'm going to use polar array. अब polar array में आप ध्यान से देखेंगे मैंने कितने legs यूज करे यहाँ पे? 6 legs. अब इसमें मैं क्या करूँगा कि सर्कुलर टॉप डालूंगा. क्यों? क्योंकि इसके साथ वो जेल करेगा, राइट है ना? आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ये देखिए इसके टॉप को मैं ऊपर लेके जाऊंगा और ये चीज हमारी रेडी हो जाती है. क्या बना? ये एक टेबल बना. क्या यूज किया मैंने इसमें? पहले मैंने टेपर करा. टेपर करने के बाद में एरे या रोटेट. तो इसमें देखिए मैं बार बार क्या कर रहा हूं? इन वेरिएशंस को यूज कर रहा हूं. 1 2 3 4, कहीं पे 4 टाइम्स, कहीं 4 चीजें, कहीं पे 2, कहीं पे 3. सो ऐसे करके हम वेरिएशंस यूज करते हैं. और यहाँ पे देखिए आइट्रेशन यूज करते हैं. आइट्रेशन को पिछले वीडियो में भी मैंने कवर किया था. इसमें अगेन बता देता हूं. कितने लेग्स हैं यहाँ? 6. अब मैं इस आइट्रेशंस को चेंज करता हूं. अगर मैंने 4 कर दिया तो इज इट लुकिंग गुड और नॉट? ये असेसमेंट करनी है आपने. अगर मैंने इसको 8 कर दिया तो क्या? ये देखिए 8 में कैसा लग रहा है आपको? अगर मैं इसको 12 कर दूं, सो ये क्या कर रहा हूं मैं? नंबर्स बढ़ा रहा हूं. सो दिस इज नथिंग बट आई एम रिपीटिंग द लेग अगेन एंड अगेन. इसी को कहते हैं हम आइटरेट करना, आइट्रेशंस करना. सो मैं आइटरेट कर रहा हूं. अब मैं इसको 18 नंबर कर देता हूं. देखिए क्या हुआ. देन 22 कर देता हूं. अब देखिए, ये देखिए ये क्या बना, देख रहे हैं आप? सो आइट्रेशन का बेस्ट एग्जांपल है हमारा पोलर एरे कमांड या कोई भी एरे कमांड, रेक्टेंगुलर और पाथ 1. सो ये हमेशा मैं बार बार ये कर रहा हूं कि इस एंगल के कंडीशन को, कि एंगल लेना है, शीट लेना है, मैं वही ले रहा हूं. मैं इनमें से कोई भी वेरिएशन यूज कर रहा हूं एंड देन आइटरेशन यूज कर रहा हूं और मैं टेबल बना दे रहा हूं. लेकिन ये अभी इनिशियल स्टेज है. इसको मैं रिफाइन करूंगा. 1 टाइम नहीं अच्छा लगा तो 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, टिल द टाइम एज अ डिजाइनर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कीप ऑन वर्किंग. If you want to improvise your product, obviously you'll have to work again and again and again, time and again. तभी जाकर के कोई एक नई चीज आप बना पाएंगे without copying from internet or from any source. Got the point?
सो ये था हमारा वेरिएशन नंबर 2, 4, 5, 6, 6। अब हम बात करेंगे बेंड की। अब ये बेंडिंग है क्या? बेंडिंग करने के लिए अब हम लेंगे इसका एक कॉपी लेने के बाद मैं जाऊंगा यहां, कॉपी करूंगा और मूव कर लूंगा मैं इसको, ठीक। उसके बाद इसको मैं एक्सप्लोड कर दूंगा। मैं कैड नहीं सिखा रहा हूं, इसमें क्या सिखा रहा हूं आपको? वेरिएशंस एंड iterations to create a new product if you are totally blank। मैंने ये लिया। इसको लेने के बाद अब मुझे क्या ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप क्या यूज करो? बेंड यूज करो। बेंड यूज करने के लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले कि इसको यूज करूँगा। इसको यूज करने के बाद मे बी आई एम गोइंग टू यूज लेफ्ट वन और फ्रंट वन। ओके, सो मैंने एक लाइन लिया। लाइन लेने के बाद इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने आर्क कमांड ले लिया और मैंने ये बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पाथ है, एक शेप है, राइट। अब मैं इसको क्या करूँगा कि बेंड करा दूँगा। कैसे बेंड कराऊँगा? आप देख सकते हैं कि मैंने इसको क्लिक किया, पाथ पे सेलेक्ट किया और ये देखिए क्या हुआ। ये एंगल क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है। तो मैंने क्या कंडीशन फुलफिल किया इसमें? सिंपली अभी मैंने बेंड किया है। बेंड करने के बाद कोई भी इसमें वेरिएशन यूज कर सकता हूँ, right? So let's move to this particular space and then go to top view and then after इसको again मैं array command यूज करूँगा। array यूज करने के बाद ये लीजिए array यूज करा। उसके बाद मैंने इसको पोलर किया। पोलर करने के बाद मैंने यूं बनाया। अब ये देखिए ये क्या बना। ये करने के बाद जस्ट इमेजिन मैं इस बारी क्या करने वाला हूँ। ये देखो ढांचा या ये फ्रेम या स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नीड टू वरी। अब मैं यहाँ पे इसको यूँ लूँगा। यूँ लेने के बाद इसकी थिकनेस ले लूँगा, मे बी जस्ट 2 इंचेस एंड देन आफ्टर मैं इसको एडजस्ट करूँगा ठीक से। अभी ये ठीक से एडजस्टेड नहीं है, इसको सही तरीके से एडजस्ट करना होगा साथ, सो दैट ये सबको एडजस्ट करे अपने अंदर, मतलब टच करे इसको। मतलब ये है, मैं ये चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एज अ पिलर ये चारों तरफ की चीज़ें सपोर्ट करे, कुछ ऐसे मैं ये चाह रहा था। तो कुछ इस तरह की चीज़ मैंने क्रिएट कर दी। किससे? बेंड से। किसको बेंड किया? एंगल को। शीट हमारी वैसी या तो ट्रायंगुलर फॉर्म में, शेप में, सर्कुलर शेप में, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में, किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट किस में कर रहा हूँ? सिर्फ एंगल में, क्योंकि कंडीशन ये है कि आपको एंगल को ही लेकर एक ही यूनिट, मल्टीपल हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, मल्टीपल सेक्शन ले सकते हैं। मल्टीपल सेक्शन लेने के बाद हम इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं एंड देन आइट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अब इस आइट्रेशंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैं 12 कर देता हूँ, जस्ट डबल। इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ और भी। अगर मैं इसको और भी ज़्यादा कर देता हूँ तो ये देखिए क्या होगा। आई वॉन्टेड टू यूज़ 55। ये देखिए, आपने देखा आइट्रेशंस कैसे इस चीज़ को कहाँ से कहाँ बदल के रख दिया। इस तरह के शेप में एक हम स्टेडियम भी बना सकते हैं। तो देखा आपने, आपके वेरिएशन कितने सिंपल है, राइट? इनमें से 2 वेरिएशन मैंने यूज करे। कौन कौन से? बेंड एंड नहीं, रोटेट। एरे यूज किया ना।
इन दोनों को यूज करने के बाद एक यूनिक सी चीज मैंने बना दी। अब इसमें भी इतनी वैरायटी बनाई जा सकती है। अकेले इस पर्टिकुलर चीज को मैं 10 अलग अलग टाइप के फर्नीचर या बिल्डिंग के स्ट्रक्चर ढांचे को बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं? क्योंकि मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहा हूं। गॉट द पॉइंट? जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कुछ देर पहले कि डिपेंडिंग ऑन द डेटा, आपके पास में इंफॉर्मेशन या डेटा या एक्सपीरियंस, वर्ल्डली एक्सपीरियंस कितना है, उसके हिसाब से चीज़ों को सोचते हो। सो इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टेड डूइंग द डिज़ाइन, सो आपके पास में बहुत ज़्यादा इनपुट्स नहीं हैं पहले से, सो आप बहुत सिंपल चीज़ें क्रिएट करोगे, बट धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ आप जाओगे, और जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हैंडल कर सकते हो, मीन्स यू आर बिकमिंग डिज़ाइनर। बट इनिशियली वी बिगिन विद जस्ट वेरी सिंपल थिंग, that I have taken one section and then this variation and then we do the iteration. इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता कि देखा आपने मैं इस आइट्रेशन को यूज करके क्या बना लिया। वापस से मैं सिंपल देखो अब क्या बन गया। कोई कह सकता है कि ये आइट्रेशन उसी स्टेडियम का है। अब कोई कहेगा ये पता नहीं कुछ ऐसा नलके वलके टाइप का लग रहा है, 3 साइड से लगा हुआ है, पता नहीं क्या है ये, राइट। सो आप कितनी भी वेरिएशंस को यूज कर सकते हैं एंड आइट्रेशंस को यूज करके चीजों को बना सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड बेंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज शेल। तो शेल को यूज करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सो दैट we could relax and do deeper delving into it. एक वीडियो में सारी चीज़ें बताने से क्या होता है कि आप भी थक जाएंगे, और YouTube पे लोग सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते लंबे वीडियो को। So hope you have understood video number 2 of the series variation with iterations. Thank you very much for watching this video.